Hello friends, very welcome to all of you once again. So in this video we are going to continue with another ES6 feature जिसका नाम है function के default parameters. Okay, so as usual let's jump onto the screen directly and let's get started with the hands-on to understand this default parameters topic. So let me quickly switch to my screen over here. और यहाँ पे VS Code के अंदर obviously there are two files again, HTML and JavaScript, and let's get started with the JavaScript code directly. So आज तक जितने भी हमने functions बनाए, so let's say function, if I just create a function greet, okay, और greet function क्या करेगा, it will just return let's say welcome, okay, and I'll just bind a variable welcome and the name of a person to whom we are trying to greet. तो यहाँ पे मैं लिखूँगा नेम कुछ इस तरीके से, और while invoking the greet function I'll be passing a name. So let's say I'll be passing my own name, for example Sagar, and let's console log this line. So console log greet. अभी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर कहाँ पे पिक्चर में आते हैं, द आउटपुट इज क्वाइट ऑब्वियस, वेलकम सागर. डिफ़ॉल्ट पैरामीटर कहाँ पे पिक्चर में आता है. मान लो अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी इनपुट दिया ही नहीं तो क्या प्रिंट होगा, वेलकम अनडिफाइंड, एंड दैट्स एग्जैक्टली द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग. सो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स मतलब क्या, जो भी पैरामीटर्स हमारे फंक्शन के पास है उसको कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करके रखना, ताकि just in case अगर while invoking function we forget to pass any value और the value which is being computed और ultimately वो computed value dynamically अगर हम पास करें वो वैल्यू अगर undefined आ गई या फिर null आ गई तो वो यहाँ पे undefined और null जैसे keywords को प्रिंट नहीं करेगा या फिर इस्तेमाल नहीं करेगा. इन केस वो क्या करेगा, यहाँ पे जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ऑब्वियसली द डिफ़ॉल्ट वैल्यू हैज़ टू बी अ मीनिंगफुल वैल्यू, तो ही पूरे हमारे क्या बोलते हैं उसको, लॉजिक को कुछ ना कुछ मतलब प्राप्त होगा. तो दैन डिफ़ॉल्ट वैल्यू विल लुक समथिंग लाइक दिस. सो वेलकम गेस्ट, if in case I forgot to pass any value to the name argument, it will print the default value, and that's exactly the idea behind this default parameters. Abhi let's play with these default parameters in different cases कि how they are actually going to work. So मान लो यहाँ पे एक तो default parameter का basic concept तो आप सभी के समझ में आया. दूसरी चीज़, अगर मैंने यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं पास की तो अर्लियर इट वाज ट्रीटिंग दिस वैल्यू एज अनडिफाइंड, बट नाउ इट इज ट्रीटिंग द डिफॉल्ट वैल्यू एज द वैल्यू. व्हाट हैपन्स इफ आई जस्ट पास अ वैल्यू. सो इफ आई वाज नॉट पासिंग एनी वैल्यू, क्या हो रहा था, डिफॉल्ट वैल्यू जो हमने पैरामीटर को पास करके रखी है दैट वैल्यू वाज बीइंग कंसिडर्ड. लेकिन अगर मैंने कुछ वैल्यू यहाँ से पास कर दी तो then the obviously default value is not going to get considered. फिर जो वैल्यू हमने पास की है वो कंसिडर हो जाएगी. Now let's do a little more experiments. Instead of passing a relevant value, now let's explicitly pass undefined object. Now if I am passing undefined, what will happen? Yeah, you guessed the right. Obviously the default value will be considered. Now just the way it is working with undefined, what if I pass a null value? देखते हैं null value के साथ ये work करता है क्या. The answer is no. If the value is null, it is not going to consider the default value as default value. I hope मेरा null का spelling, yeah, okay, null का n small case में, lower case में. So it works with default value or no value, and it works with if we are assigning any value, तो ultimately वो जो क्या बोलते हैं उसको, relevant value वो consider हो जाएगी, but it is not working with the null value. इतना अब तक हमने सीखा. उसके बाद एक और चीज़ हम कर सकते हैं इसके साथ कि मान लो मेरे फंक्शन के पास मल्टीपल पैरामीटर्स है. ओके, सो अगेन मैं सेम एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, वो कैलकुलेट एरिया वाला जो हम प्रीवियस कई वीडियोस में देखते आए हैं. सो लेट्स क्रिएट अ एग्जांपल कैलकुलेट एरिया, और यहाँ पे मान लो देर आर टू पैरामीटर्स विच आर एक्सपेक्टेड. वन इज द हाइट एंड अनदर पैरामीटर इज विड्थ. ओके, एंड दिस फंक्शन इज सपोज टू रिटर्न द मल्टीप्लीकेशन ऑफ हाइट इनटू विड्थ ऑब्वियसली. ठीक है, एंड लेट मी जस्ट इन्वोक द फंक्शन कंसोल लॉग कैलकुलेट एरिया एंड लेट मी पास टू रिलेवेंट वैल्यूज. ऑब्वियसली क्या होगा, मुझे आउटपुट जो ये जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो यहाँ पे दिखाई देगा. नाउ इफ आई डोंट पास द सेकंड वैल्यू, व्हाट विल हैपन, नॉट अ नंबर, और नैन स्टैंड्स फॉर नॉट अ नंबर. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं डिफॉल्ट वैल्यू का इस्तेमाल करूँगा. सो आई विल गिव हाइट, द डिफॉल्ट हाइट विल बी लेट्स से 10 एंड डिफॉल्ट विड्थ इज इक्वल टू लेट्स से 20. लेकिन इन द केस ऑफ कैलकुलेटिंग एरिया
ये जो 10 20 ये जो कांस्टेंट वैल्यू दे सीम्स नॉट करेक्ट, राइट। इन द केस ऑफ दिस ग्रीड फंक्शन अगर कोई भी वैल्यू पास नहीं हुई तो डिफॉल्ट वैल्यू विल बी गेस, इट मेक्स सेंस। लेकिन एक रेक्टेंगल को हम मतलब एक रेक्टेंगल के डायमेंशन को, हाइट एंड विड्थ इज व्हाट बेसिकली डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल, तो उसके रेक्टेंगल के डायमेंशंस को हम क्या डिफॉल्ट वैल्यू दें। तो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं कि हाइट विल बी अ कंपल्सरी पैरामीटर एंड विड्थ विल बी इज इक्वल टू हाइट। कुछ इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से हमें यहाँ पे अनडिफाइंड या फिर नो वैल्यू को प्रिवेंट करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट मेक्स नो सेंस टू कीप अ डिफॉल्ट वैल्यू टू ईदर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं डिफॉल्ट वैल्यूज़ का, मतलब हाइट या तो आप हाइट और विड्थ दोनों को पास करो, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे हाइट और विड्थ दोनों पास करता हूँ तो मुझे दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। बट व्हाट इफ आई डोंट पास अ विड्थ, आई पास ओनली वन पैरामीटर, तो वो ऑटोमेटिकली विड्थ को हाइट जितना ही कंसिडर करेगा। सो व्हाट शेप इट इज मेकिंग, कमेंट में बताइए मुझे कि इफ द हाइट आई एम पासिंग ओनली एंड इफ यू आर ऑटोमेटिकली द विड्थ इज ऑल्सो गेटिंग कंसिडर इज इक्वल टू हाइट। ओके, तो यहाँ पे 12 × 12 144, तो ये किसका एरिया है, जस्ट डू राइट अ कमेंट, ये कौन सा शेप बन गया। सो कुछ इस तरीके से हम डिफॉल्ट वैल्यूज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही केवल अलग अलग वेरिएबल्स को डिफाइन करते वक्त, बट जो कंसेप्ट हमने वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोस में सीखी डिस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट। सो व्हाइल क्रिएटिंग द डिस्ट्रक्चरिंग ऑल्सो, मान लो अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है, कौन सा एग्जांपल मैंने डिस्ट्रक्चरिंग के वक्त कवर किया था, ओके सेम ही एग्जांपल था ना कैलकुलेट एरिया का जो हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, कि मान लो इफ रेक्टेंगल इज अ शेप, इट हैज़ टू प्रॉपर्टीज, हाइट एंड विड्थ, समथिंग लाइक दिस। तो ये डिस्ट्रक्चरिंग के वक्त भी ये जो चीज़ है ना ये काम करती है, कि मान लो अगर मुझे रेक्टेंगल का ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट अगर मैंने यहाँ पे भेज दिया कुछ इस तरीके से, तो दो अलग अलग वेरिएबल्स तो यहाँ पे काम नहीं करने वाले। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डिस्ट्रक्चरिंग का सिंटैक्स लिखना पड़ेगा, एंड देन द हाइट विल बी डिस्ट्रक्चर्ड, देन द विड्थ ऑल्सो विल बी डिस्ट्रक्चर्ड। इफ़ अगर मैंने विड्थ पास नहीं किया तो ही हाइट को ही विड्थ को असाइन किया जाएगा, अदरवाइज इन दिस केस नाउ 240 जो हमारा एक्सपेक्टेड आंसर है 12 × 20 वो हमें मिल गया। बट व्हाट इफ आई रिमूव द पार्ट ऑफ विड्थ कंप्लीटली, तो क्या होगा, लेट्स रिफ्रेश, व्हाई इट इज स्टिल 240, इट वॉज सपोज टू कंसिडर एज 144, या नाउ इट इज़ वर्किंग, मैंने फाइल सेव नहीं किया था। सो अगर मैंने सिर्फ यहाँ पे हाइट रखा तो वाइल डिस्ट्रक्चरिंग, ये सिंटैक्स आई होप अभी सभी को पता है क्योंकि ये मैंने पिछले वीडियो में कवर किया है। सो इफ आई एम ओनली पासिंग द हाइट while destructuring the height is correctly getting destructured and we are receiving in the height variable, but in this case width is not existing, width does not exist, तो उसने height variable को ही जो हमें ऑलरेडी मिल चुका है उसे width को असाइन कर दिया या फिर पास कर दिया, and this is how the default parameter works. So let me quickly check if I'm missing anything in the default parameter. मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स बना के रखे हैं, so let me quickly have a look. किधर गया मेरा, या सो डिफॉल्ट पैरामीटर के अंदर हमने क्या क्या कवर किया, उप्स यहाँ पे नहीं, ओके, या सो डिफॉल्ट पैरामीटर के अंदर हमने क्या क्या कवर किया, बेसिक यूसेज कवर किया हमने, मल्टीपल पैरामीटर्स के साथ कवर किया, हाइट इज इक्वल टू विड्थ कवर किया, डिस्ट्रक्चरिंग का एग्जांपल भी कवर किया, और अनडिफाइंड, या सो आई हैव कवर प्रीटी मच एवरीथिंग. सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस. So if you like this video, again बहुत ही छोटा सा वीडियो था ये. So if you like this video, hit the like button. To follow this playlist again, subscribe to our YouTube channel. Stay tuned and I'll see you in the next video. Bye bye.